Hello dear students of class 11th, I welcome you in my online tutorials. As you know that we are covering in parallel with your routine syllabus, oscillation and waves, the last unit of your 11th physics. This is the second video lecture for this chapter, and in first lecture you studied about the basics of periodic motion and how to represent periodic motion with the help of mathematical functions. And here I am with the second video on the same, and the topic is simple harmonic motion, or simply SHM. What is SHM? SHM is a special type of periodic motion, oscillatory motion, in which force is directly proportional to negative of displacement. Displacement को अगर हम x से represent करें, so in other words we can say F is equal to minus kx. If F is equal to minus kx, displacement is related to force with this relation, your motion is said to be simple harmonic motion. In last video lecture we discussed how sinusoidal function can be used for representing displacement as a function of time. So y is equal to a sin omega t. Last lecture में हमने ये equation discuss की detail में, where omega is the angular frequency, omega is the name of the symbol. One of the student was asking कि omega angular frequency है ये या omega इस symbol का नाम है और ये represent करती है angular frequency. Angular velocity को भी हम omega से represent करते हैं. t हमारा variable time है, small t. कैपिटल टी हमारा टाइम पीरियड है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी, नॉट स्मॉल टी. तो स्मॉल टी हमारा टाइम वेरिएबल है और वाई हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, कि राइट एट दिस टाइम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is representing SHM. I will give you proof how a sin omega t is representing simple harmonic motion. Y is the displacement. Let us differentiate it for calculating the velocity. Velocity will become dy by dt, and the differentiation of sin omega t will become cos omega t and multiply by omega. So we will get a omega cos omega t. Let it be first equation, let it be second equation. Now we have already studied, हमें पता है अगर हम velocity को further differentiate करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. तो a ओमेगा cos ओमेगा t को अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा sin ओमेगा t. तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t. अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे, जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 what you can do, you can write a as माइनस ओमेगा स्क्वायर और a sin ओमेगा t की जगह आप y लिख सकते हैं. तो आपके पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y. लेट ओमेगा स्क्वायर बी अ कांस्टेंट k, और जो y है हमारी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है इंस्टेंटेनियस, which means our acceleration is equal to minus ky, which is nothing but the condition required for a motion to be simple harmonic motion. Displacement should be negative, displacement should be directly proportional to force, force should be directly proportional to negative of displacement. तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो acceleration है वो negative of displacement के equal है. आपको पता है कि अगर acceleration मेरा negative of displacement के directly proportional है, if I will multiply by mass on both side, so this ma will become force, and this minus mk is still some constant, so your force is directly proportional to minus of displacement. तो acceleration अगर हमारा directly proportional आ गया displacement के,
तो मतलब हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया माइनस डिस्प्लेसमेंट के। मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो स्टिल mk इज अ कांस्टेंट एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने आपको क्या प्रूफ बताया अभी, ये मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। इससे पहले मैंने आपको y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t को सिंपल एक एग्जांपल दिया था ऑसिलेटरी मोशन का, विच इज अ टाइप ऑफ पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में भी डिफरेंस है। रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन ऑलवेज go in the playlist and you can check the same videos which you need to watch before moving ahead in the syllabus. Okay, after this I'll discuss with you how to calculate velocity and acceleration as per the numericals being asked in your syllabus. Okay, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी गिवन कंडीशन पे, वो कंडीशन कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम भी हो सकती है, वो कंडीशन कोई डिस्प्लेसमेंट की टर्म में भी हो सकती है, वो कंडीशन कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की टर्म में भी हो सकती है, और आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो आपका वेलोसिटी हो सकता है, वो आपका एक्सेलरेशन हो सकता है, या वो आपका एनर्जी हो सकता है। आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा ध्यान देके ये वाले लेक्चर को आप सुनो। देखो, आपने ये पढ़ लिया ऑलरेडी कि हमने y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करना है, जो हमारी y डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारा पहला तो वेरिएबल इस इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी चीज, आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है वो इसका डिफरेंशिएशन है, तो यू जस्ट रिमेंबर डिफरेंशिएट इट। तो ये आपको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा t। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा वेलोसिटी का। तो पहले तो आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को ही एनालाइज करो। डिस्प्लेसमेंट हमने कल एनालाइज की थी ऑलरेडी, कि अगर मैं यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो वो साइन ग्राफ बनेगा, और ये डिफरेंट वैल्यूज हैं टाइम की। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t is equal to t/2, t is equal to 3t/4 and again t is equal to t। जहां वापस से डिस्प्लेसमेंट y 0 हो जाएगी और ये टाइम है। लेकिन अब आप वेलोसिटी को अगर देखें तो आपने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी जो है वो हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गई कोस, और कोस का ग्राफ हमारा सेम डोमेन में कैसे बनेगा। अगर मैं सेम टाइम की वैल्यूज के साथ आपका कोस का ग्राफ बना के दिखाऊं तो कोस का ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। तो आप कोस के ग्राफ में देख रहे हो कि जब आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तब आपकी वेलोसिटी 0 है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है तब आपकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है तब आपकी वेलोसिटी फिर 0 है, और वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट फिर जब 0 हुई तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये बोलने में चाहे आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं, ये बहुत सिंपल है। ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये आपका एसएचएम का एग्जांपल है। इफ यू लुक एट दिस पेंडुलम, आप देखो जब ये एंड पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स होती है डायरेक्शन, यानी कि उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जब आपका प्लस a है तो वेलोसिटी 0 है। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पे है जब ये सेंटर क्रॉस करता है। एक बार इसकी वेलोसिटी राइट साइड को होती है और दूसरी बार इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड को होती है, एक बार राइट को एक बार लेफ्ट को, जब ये सेंटर क्रॉस करता है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ये मीन पोजीशन क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है पॉजिटिव, दोबारा जब मीन पोजीशन क्रॉस की तो वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम होती है। तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि हाउ डिस्प्लेसमेंट, if displacement is being represented by sine curve, then how velocity is being represented by cos curve, and again acceleration will be represented by sine curve, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन फिर sin आ जाएगा। आपका चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम है और एंड पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो एंड पॉइंट पे जहां डायरेक्शन रिवर्स होती है वहां पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो एंड पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, जहां आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है
वहीं एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। बट फॉर नाउ लेट अस कीप दिस डिस्कशन टू वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ओनली। तो इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू को जैसे अगर हमने मान लो a से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट इज y इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया पहला एसएचएम के लिए जो आप सोल्व करना सीख सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, आपको y उन्होंने दे दिया ऑलरेडी a/2, use your first equation, put the value of y, a/2 in first equation, a sin ओमेगा टी। जो ये ओमेगा टी यानी कि जो ये एंगल है जो हमारा जो साइन और कोस के साथ लिखा हुआ है, इसे हम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेज। ये हमारा फेज है एसएचएम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी समझेंगे अच्छे से, फेज के बारे में बताएंगे। तो आप यहां से पहले फेज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आप को डिस्प्लेसमेंट तो पता है y इक्वल टू a/2 है, बट फेज का मतलब है कि उस टाइम पे जब y a/2 था तो एंगल कितना था। अब मुझे पता है कि जब मेरा y a होगा तो मेरा फेज 90 डिग्री होगा। जब मेरा y 0 है तो मेरा फेज 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन y हाफ पे, a के हाफ पे, तो देखो साइन का ग्राफ तो मुझे ऑलरेडी पता है कि साइन का ग्राफ 30 पे 1/2 होता है, तो y जब a/2 होगा तो एंगल 30 ही होगा। लेकिन आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। तो आप फेज कैलकुलेट करें, तो फेज कैलकुलेट जब आप करेंगे तो देखो आपका a से a कैंसिल हो गया और आपके पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि आपके पास ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। 30 डिग्री π/6 होता है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास 1/t आ गई। आप उस टाइम पे अब ये ओमेगा टी जो है दिस इज योर की फैक्टर, आप ये ओमेगा टी की वैल्यू यहां से यूज करेंगे। और अब आपसे वेलोसिटी पूछी गई है तो आप वेलोसिटी वाली इक्वेशन पे आ जाओ। अब नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, जो वेलोसिटी की इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो जब आपका y a/2 था तब वेलोसिटी कितनी थी, तो y a/2 पुट करके इस इक्वेशन में आपने पहले ओमेगा टी फाइंड आउट कर लिया। अब ओमेगा टी की वो वैल्यू इधर पुट करके आप v फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज द कंसेप्ट। तो फेज प्लेज रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग द डिफरेंट वैल्यूज, जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड इवन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी इसी का डिफरेंशिएशन होएगा, उसमें भी फेज आएगा। तो फेज इन तीन इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन, किसी भी वेरिएबल की टर्म में आपको कंडीशन दे दी। जैसे ये मैंने आपको कंडीशन दी कि डिस्प्लेसमेंट हाफ है, कोई आपको मान लो वेलोसिटी हाफ दे देता और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता, आप सेम वे में इसको सोल्व कर सकते हो। आप वेलोसिटी वाले में वेलोसिटी की वैल्यू को हाफ पुट करते और आप फेज कैलकुलेट करते मैक्सिमम वेलोसिटी का, और फिर वो फेज ऊपर पुट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इसके न्यूमेरिकल्स की करो, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी में जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा कोस π/6 या फिर कोस 30 डिग्री। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपके पास साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके पास साइन की वैल्यूज होती हैं। कोस की वैल्यू बड़ी सिंपल है, आप इसको रिवर्स करके लिख दो, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। तो यहां पे आप जब cos 30 की वैल्यू पुट करोगे a ओमेगा √3/2, तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इतने मीटर पर सेकंड। कब, जब आपका y a/2 है तब आपकी वेलोसिटी a ओमेगा √3/2 टाइम होगी। और a और ओमेगा की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू वेलोसिटी की कैलकुलेट कर लो, और अगर नहीं दे रखी तो आप सिंपल a और ओमेगा की टर्म में इसको यहां पे छोड़ सकते हो। तो लुक एट दिस एग्जांपल। Now let us have a look at this numerical.
A particle of mass 2 kg is under SHM with t time period 2 second. Calculate its kinetic energy when its acceleration is half of the maximum. तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे y is equal to a sin omega t डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। तो ये सारी वैल्यूज के साथ साथ आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी याद रखो। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है a, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है a ओमेगा, क्योंकि साइन और कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन ओमेगा टी अगर -1 होएगा तो a ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी +1 होएगा तो माइनस, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम वैल्यूज का वो यही आएगा a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर आपको रिलेशन याद है तो यू कैन डू एनी न्यूमेरिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेकिन कब, जब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है a ओमेगा स्क्वायर होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू का जो हाफ है वो हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पहले हम क्या करेंगे, वही सेम सीक्वेंस, फेज इज द की फॉर स्विचिंग बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे इस बार, पहले एक्सेलरेशन वाली, वहां से फेज निकालेंगे, फिर हम वेलोसिटी निकाल देंगे, और वेलोसिटी आ जाएगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी a ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इस वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। a ओमेगा स्क्वायर से a ओमेगा स्क्वायर कैंसल, और आपके पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई -1/2। तो साइन की वैल्यू -1/2 कहां होती है, साइन की वैल्यू अगर आप देखें तो -1/2 जो है साइन की वैल्यू वो आपकी होएगी 210 डिग्री पे, 180 डिग्री के बाद, तो यानी कि 180 साइन पाई प्लस थीटा पे। तो वो वाला भी फार्मूला अगर आप यहाँ पे लगाएं तो आपके पास ओमेगा टी की जो वैल्यू है यू कैन इजिली कैलकुलेट। ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई प्लस पाई बाय 6, ये आपके पास फेज आ जाएगा, क्योंकि साइन का ग्राफ अगर आप देखें, वैसे तो कन्वर्जन भी कर सकते हैं, आपने 11th में मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और पाई के बाद अगर मैं पाई बाय 6 और ऐड करूंगा तो ये मेरा 210 डिग्री हो जाएगा, विच इज माई पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 पाई प्लस पाई, यानी कि दैट इज 7 पाई बाय 6। तो ओमेगा टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 पाई बाय 6। ओमेगा साइन ओमेगा टी -1/2, ओमेगा टी इज 7 पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 पे वैल्यू -1/2 होगी साइन की। तो इस ओमेगा टी पे अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए मैं यूज करूंगा ये वाली इक्वेशन। तो वेलोसिटी जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो a ओमेगा और कोस ओमेगा टी। अब कोस की वैल्यू जो है 7 पाई बाय 6 पे कितनी होती है, तो कोस का भी ग्राफ आपके सामने है। कोस का ग्राफ कैसे बनेगा, कोरस्पोंडिंग साइन के ग्राफ में। मैं तो इस ग्राफ के मेथड से बड़ी जल्दी अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ वैल्यूज को, बाकी कुछ बच्चों को डायरेक्ट निकालना भी बड़े आराम से आती है। तो कोस अगर आप 7 पाई बाय 6 वाले एंगल पे बात करेंगे तो पाई के ऊपर तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है -1, तो -1 से अब इसकी वैल्यू 1/2 कम होएगी, ठीक है। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हम इस ओमेगा टी की वैल्यू को कैलकुलेट ना भी करें, हमें तो सिर्फ साइन ओमेगा टी से कोस ओमेगा टी चाहिए, वी कैन यूज दिस सिंपल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर -1/2 हमारे पास है तो -1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ये तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/4 दैट इज 3/4, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास √3/2 आ गई, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ कोस ओमेगा टी। तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, और जो साइन है वो हमारा कंसीडर हो जाएगा।
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -√3/2। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे जब अपने फॉर्मूले में, तो cos ओमेगा t की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी -√3/2। ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। जब आपने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पे वेलोसिटी भी पूछा गया हो सकता था या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया हो सकता था। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 12mv²। आप अपने मास की वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको दे रखी है 2 kg, वो पुट कर दिया आपने यहाँ पे 2 kg, और वेलोसिटी आपने अभी भी कैलकुलेट की है। आपको टाइम पीरियड गिवन है लेकिन आपको एम्पलीट्यूड नहीं गिवन, तो एम्पलीट्यूड की टर्म में आपका आंसर आ जाएगा, आप ए को ए लिख देंगे, इसका स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर 3/4, 2 से 2 कैंसल। आपको टाइम पीरियड 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ओमेगा जो है वो 2π/t होता है, तो 2π/2 ओमेगा की वैल्यू आपके पास पाई आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी इस वाली इक्वेशन से आगे क्या आ गई, a² π² 3/4 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको a की भी वैल्यू दे रखी होती, सपोज एम्पलीट्यूड 1 मीटर दे रखा होता, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती, 3/4 × π² जूल, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली सोल्व होके कितना आ जाता, वो आपका आ जाता, π² अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, तो 30/4, 4 7 जा 28 बचे 2 एंड 4 5 जा 20, तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती जब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, हाफ थी ओरिजिनल वेलोसिटी की। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन हाफ था ओरिजिनल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी आपको कंडीशन गिवन हो इन तीन इक्वेशन में से, सबसे पहले तो वो आपको कंडीशन क्या दे सकता है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट की कोई भी वैल्यू दे सकता है, मैक्सिमम वैल्यू की, वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने पहले फेज कैलकुलेट कर लेना है, फेज कैलकुलेट कर लो या sin ओमेगा t की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वहां से cos ओमेगा t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इजीली, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो आपको साइन से कोस में भी कन्वर्ट नहीं करना, जो sin ओमेगा t की वैल्यू आएगी वही आपने एज इट इज पुट कर देनी है। लेकिन सिर्फ अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी है तब आपने sin थीटा की वैल्यू से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, और आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी या एक्सेलरेशन आ जाएगा या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर को एक बार ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में है जो सोल्व वो देखो, and then we will discuss in our live class. So like always, take care of yourself and thanks for watching. See you in next lecture. Bye bye.